वुड से कि सरमद खूसट साहब मुझे बहुत ही अजीब अजीब से काम में इन्वॉल्व करते हैं। और मेरे ख्याल में हमारी जिंदगियों में इतनी एंग्जाइटी है कि बहुत सारे लोग टीवी को इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टीवी पे ड्रामे में क्या होगा। हाँ. एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। याद है जब शाहरुख खान की वो फिल्म आई थी, अपने आप को वो ओपन नहीं छोड़ते। राइट. और बनाने वाले भी मेरे ख्याल में लोगों को फॉलो करना शुरू हो गया कि अच्छा इस डब्बे वाला ड्रामा बनाना है। अगर औरतें अपनी नीड्स एड्रेस करनी शुरू कर दें तो फिर मर्द क्या करेंगे? जी, आई एम सिटिंग हियर विथ वन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट यूट्यूबर्स आमना हैदर इसानी। आप उनका चैनल समथिंग हॉट जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो बताते रहेंगे जब उनके नए शोज आएंगे। और मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मुझे आना है इस शो पे, और अब मैं आ चुकी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। सी यू देयर। निम्रा बुच्चा, आमना हैदर इसानी, so excited to be here. कभी चुड़ैल कभी कमली. हाँ. ये कैसा आप पे लेबल लगा? इतना सिलेक्टिव काम, इतना कोई जीनियस एक्टर हो और इतना सिलेक्टिव काम करे, और फिर सडनली हम उनको देखें एक टीजर में, एक ट्रेलर में, कमली में. What's happening? Oh God. थोड़ा कभी कभी मिलता है काम, और I don't believe that. जी बहुत थोड़ा मिलता है। और जो थोड़े टेढ़े लोग होते हैं वो उनको अच्छा लगता है कि कोई टेढ़ी चीजें वो बनाएं, और जो आपके अंदर की कमली को पहचाने. जी बिल्कुल। और खास तौर पे आई वुड से कि सरमद खूसट साहब मुझे बहुत ही अजीब से काम में इन्वॉल्व करते हैं। राइट. और फिर वो किस्मत हमारी कोई अच्छी है कि वो फिर अच्छा बन जाता है, वरना तो मेरे ख्याल में उनकी नीयत कोई इतनी अच्छी नहीं होती। ये बड़ा लोडेड कमेंट है, ये कहीं भी किसी तरफ मैं इसको लेके जा सकती हूँ. ले जाइए आप जहाँ ले जाना है। मगर why Kamli? Was it Sarmad? Was it the script? Was it your character? What made you sign up for it? I think Sarmad has a lot of moral pressure to cast me because he knows that I would be very upset if he didn't. But then I think when Kamli was being written at that time, I was very excited and supportive of the film coming out at that time. मेरी बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं थी investment that I wanted to do anything in it. But of course, when he started talking about it, and also when we are not doing a project together, we pretend that we are not actors, and we have other aspirations के हम chef बनना चाहते हैं या property develop करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं. And then suddenly, it's actually a bit strange then when we start talking about acting again, and then we're like, oh, okay, so that I'm an actor, or you're a director, and that's awkward, right? And I think we have such an equal relationship that I actually don't like to see myself as that person who he would choose or have any kind of directorial sort of authority over or something. But having said that, he comes up with something, and I think that it's on paper, it's always a bit frustrating to read the characters that have gone down well that I've done with Sarmad. So Manto, for example, right, the character of Hamzad, very frustrating I felt when I saw it. I couldn't see what it later became, right, and I think same in Kamli, but I think that sort of helps also, right, because how can you go into something knowing what it's going to be like, especially something like film where so many factors come together to make that image, that magic. Right. So I think it's good to start with like zero kind of assumptions about it as well. And so you could say it's been kind of very lucky that these characters have become something bigger than the parts, the sum of the parts. आपने काम जब किया है सरमद के साथ, वो मेमोरेबल ही रहा है. ऐसा कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कि बंदा कहे कि नहीं ये ऐसा ये क्यों साइन किया है. I think also with Sarmad, I did something which was a drama, which I mean, now we can say अच्छा इसमें ये मसला है और वो था और ये नहीं होना चाहिए था. But that was what kind of made people notice me, as a TV actor, because it was very popular. Right. People used to wait for it and watch it. Mera Yakeen, I'm talking about. Yeah. So
Yeah, so we've done that kind of stuff as You've well. done that kind of stuff, and then of course there was Manto, और उसमें आप उनकी muse हैं, Yeah. and then there was Aakhri Station, Yeah. और ये बड़े heavy loaded projects हैं ये. Yes. Also, Aakhri Station, I was like, okay, this is like an episode that I'm doing, and Haan. I'm in town, and let's just do it. And he's like, oh, would you want to do this? And then it was also like, again, very organic. Like you're thinking on your feet when you're ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, and then of course Sarmad has to he decided to do a cameo as well in it, and that was also kind of fun. And so it was like, again, it was like no grand plan that this is how it's going to come out. I think it's never like that, and that's what's nice. हमें उर्दू में बात करनी चाहिए अंग्रेजी में? ज्यादा उर्दू में ठीक है. सॉरी, आई एम सो सॉरी. अगर मैं आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछूं भी तो आप उर्दू में जवाब, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. मेरी बिल्कुल नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है आपकी उर्दू, बहुत अच्छी है. मेरे शायद सवालात इतने अच्छे ना लगे उर्दू में, लेकिन आप जवाब उर्दू में दीजिएगा. तो आपने कमली का ट्रेलर हमने देखा, नो डायलॉग्स एट ऑल. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? इट्स अ साइलेंट ट्रेलर, कोई एक बंदा कुछ नहीं कह रहा और एक बड़ी मेनेसिंग सी उसकी म्यूजिक चल रही है पीछे. I mean, ये बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, क्योंकि ये फिल्म है और ये इमेज है, और अगर वाकई इतना स्ट्रॉन्ग इमेज है कि उसको अल्फाज की जरूरत नहीं है, एक तरह से इट्स अ साइलेंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर इज अ नॉस्टैल्जिया जिसमें आपको एक साइलेंट फिल्म वाले उसमें चले गए, जहाँ पे परफॉर्मेंस इज की एंड म्यूजिक और वो सारा कुछ. और आई थिंक इट्स ऑल्सो, आई ऑल्सो वांट टू सी इट एज अ प्रोटेस्ट ऑफ सम काइंड. क्या हम डायलॉग नहीं बोलेंगे इसमें? किस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे सरमद? बस अब हमें करना तो बहुत सारी चीजों का चाहिए. आजकल के आर्टिस्ट को तो बहुत प्रोटेस्ट करना चाहिए. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और मेरा ख्याल है कि सरमद का काम भी एक तरह का प्रोटेस्ट ही है. और सरमद का काम एक ऑब्जर्वेशन भी है, जो कि आप जब फिल्मों की बात करते हैं और फिल्में बनाने की, और फिल्में हमें क्या बनानी चाहिए और किस तरह की बनानी चाहिए, हमारा जॉनरा क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी फिल्म क्या होती है, तो मेरे ख्याल में फिल्म एक ऑब्जर्वेशन है. जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं उस वक्त की ऑब्जर्वेशन है. और अगर वो ऑब्जर्वेशन हम सब मिल के कर रहे हैं और उसमें इमोशनली हम एंटेंगल हो रहे हैं उस चीज में, इन्वेस्ट हो रहे हैं, सो इन्वेस्ट हो रहे हैं, एंड आई वुड इवन से एंटेंगल, बिकॉज क्यों हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं. एक हम पे उसका एक जो असर हुआ है, आई थिंक अच्छी फिल्मों का यही होता है ना, जो आप पे एक अजीब सा असर होता है और आप चाहते नहीं है कि आप पे हो, लेकिन आप पे हो जाता है. तो ये एक मेरे ख्याल में कामयाबी है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. निम्रा, आप परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं, मैंने आपको लाइव इंस्टॉलेशन करते हुए भी देखा है अमीन गुलजी के स्टूडियो में, और थिएटर भी है, और टेलीविजन का काम भी आपने किया है, और देयर इज म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, फिल्म भी है. आपको क्या ख्याल है, फिल्म को आजकल बड़े ब्लर हो गई हैं बाउंड्रीज, कि जो टेलीविजन पे बन रहा है ऐसा लगता है हमारी फिल्में भी कुछ एक्सटेंडेड ड्रामाज हैं, फिल्में नहीं लगती. पाकिस्तान की बात कर रही हूँ. इस वक्त पाकिस्तान के लिए आप फिल्म को कैसे डिफाइन करेंगी, कैसी होनी चाहिए? मैं वही आपसे कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इन चीज़ों से निकालें, इन डेफिनेशन से निकालें कि हमें किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए. हम फिल्म बनाना चाहते हैं, पहली बात तो ये, क्या हम फिल्म बनाना चाहते हैं या हम ड्रामे बनाना चाहते हैं. अगर हम ड्रामे बनाना चाहते हैं तो हम बनाते रहें ड्रामे, और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, और उनमें बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, बहुत सारे ड्रामे ठीक ठाक भी हैं, कुछ देखने के काबिल नहीं है, लेकिन उसमें ये कंफर्ट है कि अच्छा आपने टीवी ऑन किया, रिमोट लेके आप लेट गए और आप पे कोई बहुत ज्यादा किसी चीज का असर नहीं हो रहा. और मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी में इतनी एंजाइटी है कि बहुत सारे लोग टीवी को इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टीवी पे ड्रामे में क्या होगा. एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन स्ट्रेस नहीं देता आपको. लेकिन सिनेमा में एक आपको एक्टिव होना पड़ता है ना, एक तरह से, कि आप घर से निकलेंगे, आप शायद कुछ लोगों को साथ लेके जाएंगे, आप पैसे खर्च करेंगे, बाल शाल बनाएंगे, हो सकता है हम कभी बनाते कभी नहीं बनेंगे. मुझे याद है जब शाहरुख खान की वो फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, तो मैं इतना तैयार होके गई थी देखने के लिए. मुझे था कि पता नहीं शायद वो हमें स्क्रीन से देख लेंगे. सो आई थिंक ये सिनेमा में एक आप एक एक्टिवली उसमें एक शामिल होते हैं उस सारे एक्सपीरियंस में. जैसे आज राज कपूर और रफीक हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं. बिल्कुल, थैंक यू. एब्सोल्युटली. जी तो यही बात है. आई थिंक वो हम उससे फिल्म से इसलिए डरते हैं मेरे ख्याल में, देखने से, कि उसमें आपको एक थोड़ा सा अपने आप को
अपने इस कंफर्ट जोन से निकालना पड़ता है। तो चाहे वो आप गाना, डांस, लड़ाई वाली फिल्म देखने के लिए जा रहे हो, अगर आपको एक्शन फिल्में देखने का है तो उससे भी आपको घर पे नेटफ्लिक्स की आपको इतनी आदत हो गई है, मुश्किल है ना घर से निकलना थोड़ा। बिल्कुल जी। निम्रा, आप खुद किस किस्म के ड्रामे देखती हैं, या नेटफ्लिक्स पे या ऑनलाइन या फिल्में, क्या क्या आप एंजॉय करती हैं? मेरे ख्याल में मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे कोई चीज देखने में एंजाइटी होती है थोड़ी सी। Really? मैं क्लिफ हैंगर्स वगैरह मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। तो वो जो खासतौर पे जो सीरीज होती है ना, जिनमें वो आपको इतना मैनिपुलेट करते हैं कि आपको फिर ये होता है कि अच्छा अगली उसमें क्या देखना है, तो वो उससे जरा सा मुझे ना घबराहट होती है। तो मैं अपने आप को उसमें सरेंडर नहीं करना चाहती हूँ सस्पेंस पे। तो मैं घर में मेरा बेटा भी अक्सर कंप्लेन करता है, वो कहता है कि तुम कुछ नहीं देखती हो और मैं तुम्हें ये लिंक भेजा, यू डिडंट वॉच इट, ये भी भेजा। तो वाकई मैं ना जैसे कुछ लगा हो टीवी पे तो मैं साथ साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ये उठाया वो उठाया, ये किया वो किया। सो या मुझे मुश्किल लगता है वो, लेकिन मुझे सिनेमा जाना बहुत अच्छा पसंद है, खास तौर पे दोपहर के वक्त। जब आप जाते हैं और अंधेरा होता है और एसी चल रहा होता है एंड पॉपकॉर्न आ रहे होते हैं पॉपकॉर्न आ रहे होते हैं और चाहे तो थोड़ी देर सो भी जाएं, अगर आपका दिल चाहे। बिल्कुल। माय हस्बैंड वो अक्सर सो जाते हैं। आई कैन इमेजिन जी बिल्कुल। मैं सोच सकती हूँ। मैंने ये सवाल सरमद से भी किया था कि जो चीज़ें बनती हैं लोग वो देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनका असर उन पे होता है, कितनी जिम्मेदारी है फिल्म मेकर्स पे या ड्रामा मेकर्स पे? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? बिकॉज कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा काम है आवाम को एंटरटेन करना। अब वो जैसे भी एंटरटेन हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी तो एक है? बिकॉज एंटरटेन आजकल किस चीज़ से हो रहे हैं? टॉक्सिक हीरोज से, सुसाइड से, इस किस्म की सनसनी टेलीविजन पे बहुत चल रही है, उसको व्यूज़ भी बहुत मिल रहे हैं। आपको ख्याल है अभी लॉस्ट आवर वे समवेयर? डू वी नीड टू कम बैक ऑन द पाथ, या ठीक है जो चल रहा है वो चलता रहे? मेरा ख्याल है कि जो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो चल रहा है वो चलता रहे, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जिम्मेदार तरीके से एंटरटेन करें। मैं ये चाहूँगी कि हम इन दोनों डेफिनेशन से निकलें। बिल्कुल। आप वो चीज़ बनाएं जो आपका आर्ट क्यों होता है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे लोग उसको देखते हैं, कोई कनेक्शन एक बनता है। जो आप एक पेंटिंग को देखते हैं एक कनेक्शन बनता है, आप गाने को सुनते हैं कनेक्शन बनता है। कनेक्शंस बनाएं। मेरे ख्याल में ये एक जरूरी चीज है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करें। अगर आप जैसे कह रही हैं कि सुसाइड वगैरह के बारे में ड्रामे बन रहे हैं या मेल टॉक्सिक मेल, और एग्जैक्टली वही बात कि हम एक लफ्ज आता है हमारे पास, उसके बाद फिर हम उस लफ्ज को तलाश करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये इसमें भी टॉक्सिक मेल है, इसमें भी टॉक्सिक मेल, एंड देन एक बड़ा सा वो एक बन जाता है कि अच्छा ये ड्रामा मैं नहीं देख सकती क्योंकि इसमें एक टॉक्सिक मेल है, या ये आई थिंक हमें बहुत शौक है डब्बों में चीजों को बंद करने का, तो हम अपने आप को वो ओपन नहीं छोड़ते। राइट। और बनाने वाले भी मेरे ख्याल में अब उन्हीं चीजों को फॉलो करना शुरू हो गया कि अच्छा इस डब्बे वाला ड्रामा बनाना है, या ना ये बन चुका है, अब इसके 4 डब्बे हो गए, अब इसका एक और इसी तरह जैसे कोई अच्छी नई चीज आती है जिसको आप गेम चेंजिंग बोले, कोई चीज एक आई नई, फिर उस तरह के बहुत सारे बनने शुरू हो जाएंगे। तो आई डोंट नो लोग इस तरह की सेफ्टी हर वक्त क्यों तलाश करते हैं? जो बिक रहा है वो अच्छा लगता है ना। हाँ, यस आपको तो पता ही है। जो बिक रहा है वो अच्छा लगता है। तो कमली में क्या कनेक्शन बनेगा ऑडियंस के साथ, या अगर मैं देखने जाऊंगी तो उसका क्या कोर क्या है? कमली में इतने कनेक्शंस हैं और इतने लेयर्स हैं, और जब ये स्क्रिप्ट भी मैं पढ़ रही थी तो हर दफ़ा जब आप वो पढ़ते हैं तो एक नई चीज़ समझ आती है, एक नया लेयर खुलता है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ठीक है ये औरतें, अच्छा मुझे आई ऑल्सो डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन। आई मीन आई डोंट नो व्हाट अदर काइंड देयर आर, ठीक है ना, हर जगह हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है, तो हम फिर कुछ औरतों को एक्सक्लूड कर रहे हैं उसमें से कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? जो रोती धोती नारी है वो, तो जो रोती धोती वो भी तो स्ट्रॉन्ग है। मतलब रोना, आप अपने बेटे को कहें कि तुम रो नहीं ताकि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो वो तो गलत है ना। गलत है। तो रोना तो वीकनेस की निशानी नहीं है। या और हमारे रोने वाले ड्रामे इतने क्यों चलते हैं? बिकॉज लोगों का दिल चाह रहा है रोने का, और वो देखना चाहते हैं दूसरे लोगों को, और फिर उनके थ्रू वो रोना चाहते हैं। आई थिंक
आई थिंक ये है, मेरा ख्याल है कि आप किसी और बात पे रोना चाहते हैं, हाँ सामने कोई किसी और बात पे रो रहा है, कनेक्शन तो बन गया ना, हाँ कनेक्शन बन गया। तो वही तो मेरे ख्याल में कमली में इस तरह के बहुत सारे ये औरतें हैं जो 3 हैं, मैं नहीं कहूंगी कि ये स्ट्रांग है या वीक हैं, और 3 औरतों की हम बात करते हैं, तीन औरतें, सानिया का कैरेक्टर, सबा का कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर, और इसमें और भी बहुत सारी औरतें हैं और मर्द हैं। तो उनके साथ आपका बनेगा एक ऐसा साथ का कनेक्शन बनेगा, आप उनमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी नजर आएंगी जो हम अभी जिंदगी में हम उनसे गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में गुजर रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ लार्जर ट्रूथ इन इट, देयर आर सेवरल, बहुत सारे ट्रूथ्स हैं उसमें। कैसे? अब देखिए ना, मैं अगर आपको बता दूं कि कमली में क्या है, हाँ, तो आप सोचें सरमत बता चुके हैं। तो वो फिर उन्होंने मुझे तो नहीं इजाजत दी बताने की, तो ये हमें पता है कि इट्स अबाउट ह्यूमन डिजायर एंड इट्स द डिजायर फ्रॉम अ वुमन्स पर्सपेक्टिव, जो कि नहीं मिलता देखने को। ऑल्सो अबाउट डिजायर। और मैंने सरमत को भी ये सवाल किया कि आप हमेशा कोई ना कोई टैबू सब्जेक्ट उठाते हैं, पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ा टैबू है कि औरत की डिजायर क्या है या उसकी नीड्स क्या हैं, और व्हाई आर वी सो अफ्रेड ऑफ एड्रेसिंग दीज थिंग्स? अगर औरतें अपनी नीड्स एड्रेस करनी शुरू कर दें तो फिर मर्द क्या करेंगे? भाई ये बताएं आप। क्योंकि हमारे रहबर, हमारे प्रोटेक्टर, हमारे ऑथर वही है ना, वही हमारी कहानियां सुना रहे हैं जी, वही हमारी कहानियां लिख रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे बेचारे। सो थैंक गॉड फॉर स्टोरी टेलर्स लाइक सरमत, जी, जो इतने सेंसिटिव हैं कि वो एक बड़े ही अच्छे तरीके से कहानी बता देते हैं। जी, और उनकी जिंदगी में जो इतनी सारी औरतें हैं उनको कभी माफ भी ना करें अगर वो अच्छे तरीके से ना बताए, तो मेरा ख्याल है। Absolutely, absolutely. So you can't elaborate on your character at all? आपको क्या पता है कैरेक्टर के बारे में? थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता, कुछ कुछ भी बहुत नहीं नहीं पता। नहीं। तो ये एक आर्टिस्ट है जो सबसे एक अनयूजुअल सी इस फिल्म में बात है, वो है इसकी लोकेशन। और वो लोकेशन एक फिक्शनल लोकेशन भी आप उसको कह सकते हैं, ऑल्दो इट इज सेट इन अ बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत वाइल्ड अनडिस्कवर्ड सी जगह है, हमारी जो सून वैली है, कलर का हार है, लेकिन उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस फिल्म में, और वो एटमॉस्फेयर इन स्टोरीज को कैसे साथ बांधता है, और उन औरतों को, उनके एहसासात को कैसे फ्यूल करता है। तो वो मैं कहूँगी कि वो एक आपको इनविजिबल एक कैरेक्टर जो कास्ट नहीं किया गया, बट आई थिंक वो फिल्म उसके इर्द गिर्द चल रही है। तो द विजुअल लैंग्वेज इज द कैरेक्टर, और क्योंकि ये औरत एक पेंटर है, सो ऑब्वियसली दिस लोकेशन is very inspiring. Is inspiring. It sounds very good. It looks beautiful, haunting actually. It looks haunting. The soundtrack is so haunting. बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक ले गया है वो, मतलब आप बार बार सुनते हैं और वो आपके रूह के अंदर जाता है बिल्कुल। So what can I talk to you about Kamli without having watched the film? वही बात है, मेरे बच्चों के बारे हम आपके शोहर के बारे में बात करते हैं। मेरे शोहर के बारे में बहुत खुश होंगे, वो तो बहुत खुश होंगे इस बात से। बताते हैं अब क्या लिख रहे हैं। वो एक किताब लिख रहे हैं बहुत सालों से, और वो जो भी कर रहे हैं इस वक्त वो उस किताब के बहाने कर रहे हैं। अगर वो सो रहे होते हैं तो वो किताब के बारे में सोचते सोचते सो गए, अगर वो जाग रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो वो किताब के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत सारा क्रिएटिव लाइसेंस अभी उनको मिला हुआ है जो वो एक लिख रहे हैं। What happens जब दो कितने क्रिएटिव लोग घर में इकट्ठा रह रहे हो, तो कोहेजन होती है या कांस्टेंट? आई थिंक हम लोग we take turns to behave badly. आई थिंक उसमें कभी ये होता है कि कभी मैं उनके साथ बुरा सलूक करती हूँ, कभी वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, ठीक है, कभी वो मुझे इग्नोर करते हैं, कभी मैं उन्हें करती ये हूँ। अंडरस्टैंडिंग इसी तरह काम बस चल ही रही है ट्रेन उस पटरी पे, इसी वजह से अभी आखिरी स्टेशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। मावल की बात मैं आपसे थोड़ी बहुत तो जरूर करूंगी, बिकॉज आप ट्रेलर में आप आई हैं। ये नहीं पूछूंगी कि फवाद हैं कि और महवी शराब हैं कि हाँ, ये आप अपने तौर पे तहकीक कर लीजिए। जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी, बट मैं तो हूँ, आप हैं। ये हमने ट्रेलर में इतना हमें कंफर्म कर दिया गया कि आप हैं। बट निम्रा, कंग्रेचुलेशंस, आई मीन हाउ अमेजिंग इज दिस? Thank you. How amazing is this that we have a Pakistani American superhero? It's just lucky. It's just amazing. Do you think that Pakistan is making some kind of way on the international right now with
course, Joyland, Joyland. absolutely. Joyland देख लें आप क्या क्या हो रहा है हमारे मतलब पिछला डेकेड में कहूँगी कि हमारे बुक्स के लिए बहुत साउथ एशियन राइटर्स के लिए it was very very important. yes. But I feel now we're making some kind of headway into cinema as well. Absolutely. और मेरे ख्याल में हमारे अब बहुत थोड़े दिन पहले जो हमारे एनिमेटर्स हैं, आई थिंक क्रूज में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं Glass फिल्मों worker, में। right? जी Yes. जी 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 तो वो भी काम हो रहा है, राइटर्स भी हमारे बहुत हैं, और आई थिंक अब हमारा एक ये भी एक चल निकला है कि देर अब ज्यादा आपको ब्राउन के बहुत सारे शेड्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब आई होप कि ये हमारे ड्रामों में भी इसी तरह हो, I hope so. इसी तरह I नजर hope आए so. जी। कि सफेद और बिल्कुल। लाइट सफेद और पिंक और बिल्कुल। इस तरह के नहीं। तो आई थिंक कि आई एम वेरी लकी कि मैं इस टाइम पर एक्टिंग कर रही हूँ जिसमें एक मिस मार्वल जैसा कैरेक्टर जो कॉमिक बुक्स का, इट्स पाकिस्तानी अमेरिकन सुपर हीरो। बिल्कुल। और आप जब देखेंगी यू विल फाइंड इट सो एंडियरिंग। आप वो बच्ची, शी इज वंडरफुल, और वो कहानी हैज बीन टोल्ड ब्यूटीफुली, और मेरा कैरेक्टर भी मुझे लगता है कि बहुत मजेदार है। आई एम ऑल्सो लकी एंड वेरी ग्रेटफुल कि इस स्टेज पे अपने करियर के मुझे अभी भी चैलेंजिंग काम मिल रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो एक काम जो आप कंफर्ट जोन में करना शुरू कर दें, फिर उसमें मजा नहीं आता, ना देखने वाले को, ना आपको। बिल्कुल एंड दिस इज ग्रेट। दिस इज एब्सोल्युटली। शूट खत्म हो चुका है, बिल्कुल शूट खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते इट्स एक्चुअली कमली और मिस मार्वल सब कुछ साथ साथ हो रहा है। कभी तो कुछ भी नहीं होता और कभी इकट्ठा सब कुछ होता है। When it rains it pours। और ये बड़ी तसल्ली है कि you have somebody like Sharmeen Obaid Chinoy at the helm of it। तो ये भी है कि वो जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगी। शर्मीन जो है वो बहुत ही पेट्रियोटिक खातून है, और उनका ये होता है कि वो जहां भी जाती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का नाम लिया जाए और पाकिस्तान के लोग नजर आए। और मेरे ख्याल में उन्होंने इसीलिए ये प्रोजेक्ट चूज किया है ताकि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को एक प्राइड दे सकें। बिकॉज आई एक्चुअली बहुत कम लोग मुझे ऐसे शर्मीन जितने पेट्रियोटिक जो है ना, और यही मुझे मुझे इसी बात पे हैरानी होती है कि जो हमारे सारे पेट्रियोटिक लोग हैं, हम उनको ओन नहीं करते नहीं। और क्योंकि अगर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या हम अनपेट्रियोटिक हैं? नहीं, हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो उसमें तो उसको तो एक अनपेट्रियोटिक का लेबल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। बट देन वी बिलीव इन लेबल्स। यस, वी बिलीव इन लेबल्स। दैट्स सो ट्रू। वी बिलीव इन लेबल्स। दिस इज द वी बिलीव इन लेबल्स। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, बहुत कम था। आई नो। ऐसा करते हैं, छोड़े अगला छोड़े इसी को, वी लेट्स जस्ट कंटिन्यू। फिर किसी दिन आ जाती हूँ और मैं थोड़ी तैयारी करके आऊंगी ताकि मैं कोई मजे की बात करूँ। नहीं, मजे की बात। यू आर सच एन इंस्टीट्यूशन निम्रा, सीरियसली। आई मीन आप अगेन लेबल नहीं देना चाहूँगी, बट यू आर वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री। और ऐसा ही लगता है कि जहाँ जहाँ आप आती हैं वहाँ बहुत अपने साथ लेके आती हैं। देयर इज अ लॉट दैट यू गिव टू द ऑडियंस। आई थिंक आई हैव बीन लकी कि प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले, और फिर लोग कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होती है तो वो आपको किसी चीज़ में पसंद कर लेते हैं, और फिर वो सारी चीज़ आप पे अटैच कर लेते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भी होती। दैट्स व्हाई सिनेमा इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिनेमा को ऑडियंस बनाती है। आज हम सिनेमा की बात करते हैं तो वो फिल्म ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहेगी लोगों को, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यस, बहुत लोगों ने चुड़ैल्स नहीं देखा, लेकिन सानिया सईद भी हैं कमली में, और सानिया सईद ने सरमद की टांग काट के उसकी निहारी बनाई चुड़ैल्स में। जी, कितना अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छी तरह खाई है। जी, कितनी अच्छी तरह ने खाई। आपने भी काफी लोगों की चीज फाड़ की, और बतूल आपके कैरेक्टर ने। तो again very very lucky to have somebody like Asim. Absolutely. Asim भी बहुत बारीकी में काम करते हैं, और इतना पुश करते हैं एक्टर्स को to be better. Absolutely. लोगों ने कहा कि जी जरूरी था इतना डार्क और ग्रूसम होना। मैंने कहा जब आप इतना कॉर्नर करेंगे ना तो डार्क और ग्रूसम ही होगा, फिर डील विद इट। Absolutely. Deal with it. Absolutely. But may the industry have many more like you, because we need women like you who are strong, और जो एक वो मैसेज देती हैं कि रोती धोती औरत नहीं है, जो रो रही है वो भी स्ट्रांग है। और ये बड़ा अच्छी आपने बात की कि हर औरत स्ट्रांग है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रांग औरतें इसमें हैं और वहाँ नहीं है शायद स्ट्रांग, लेकिन यहाँ पे तीन हैं। जो रो रही है वो स्ट्रांग नहीं है, वो भी है। कितनी सारी बातें हैं। मुझे पूछना था आपसे कि आप लिख रही हैं, आर यू राइटिंग समथिंग? हैव यू थॉट अबाउट राइटिंग स्क्रीन प्लेज और ड्रामाज, फिल्में?
मैं कभी कभी कहीं कहीं कुछ कुछ लिखती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमने एक घर में ये बनाई हुई है कि लिखने का काम हनीफ का है जी और बाकी काम मेरे हैं, जी। और खाना पकाने का काम हनीफ का है और बाकी सारे काम मेरे हैं। एज तो लॉन्ग एज खाना हनीफ पका रहे हैं मैं हाँ, खुश हूँ, बस ठीक और है। पता है जब वो किताब खत्म होने लगती है ना जी। हनीफ की, तो वो खाना फिर अच्छा नहीं उस वक्त बनाता। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? आलू अंडे, क्योंकि उनको बहुत शौक है आलू अंडे खाने का। और निहारी तो नहीं पसंद है नहीं? निहारी अच्छा, वो उनको ये भी कहने का बहुत शौक है कि वो गोश्त नहीं खाते, अच्छा। हालांकि वो घर में गोश्त हो तो उसका शोरबा जरूर खाते हैं, और वो सारी बाकी उसमें से चीजें निकाल के मेरे लिए छोड़ ठीक देते है। हैं। तो बट there was too much to talk about, लेकिन yes. चुटकियां आप सुन रही हैं पीछे से जी constantly जी हमें जी हो जी रही हैं। जी जी We'll जी। have to wrap up, but it was a pleasure. थैंक यू आमना, और थैंक इंशाल्लाह यू। प्रीमियर पे भी आपसे मुलाकात होगी, यस बल्कि हो चुकी होगी आमना, जब और तक ये थैंक आएगा। यू आप यहाँ पर हैं इस वक्त, क्योंकि अगर आप इस वक्त ना होती कमली की रिलीज पर तो हम क्या करते मैं वापस आ जाती, जहां मैं दुनिया में होती मैं कमली के लिए वापस आती, थैंक ये यू हो ही सो, नहीं सकता था। बट आप बस आपके देखें वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू और it was always a pleasure. थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।